is 121, 117, 113 is its first नेगेटिव टर्म. ठीक है. सो अभी हमने पहला जो इसका जो चेक ये इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे. वी फाइंड द कॉमन डिफरेंस. सो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? सेकंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म, that is equal to 117 minus 121 is equal to minus 4. So A3 minus A2, third term minus the second term, that is equal to 113 minus 117 is equal to minus 4. Okay. So which term of the AP is its negative? So AN is less than 0. ठीक है. कौन सी टर्म होगी जो that is to be less than 0, the first term. So an is equal to a plus n minus 1 whole into d. ठीक है. So what is the anth term we do not know, and first term is 121 plus n minus 1 whole into d is minus 4. So this is equal to 121 plus minus n minus 1 whole into 4. So this is equal to 121 minus 4 and this will be minus plus 4 is equal to 125 minus 4n is equal to an. ठीक है. ये कोई nth term होगी. ठीक है. So which term of the AP is its first negative term? This is the first negative term. ठीक है. So first term negative कैसे? मैंने put n is equal to अगर हम इसमें n is equal to 1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं, इस तरह से we will start putting in which is the first term of this AP. ठीक है. So इसमें हमने 125 minus 4 into we need greater than n is मतलब जो 4n which should be greater than 125. अगर ये 4n जो है greater than 125 हो जाएगा तो ये an will be less than 0. If 4n is greater than 125 or n is greater than 125 divided by 4, यानी कि 4 to the 12, 31.25. It will be around 31. N is greater than 31.25. ठीक है. n is greater than यानी कि 32nd term. अब हम 32nd when n is equal to 32, so a at 32 is equal to 125 minus 4 into 32, let's say. So ये जाएगा 125 minus 4 to the 8, 4 to the 12, so 128 equal to minus 3. So 32nd term will be the first negative term of this AP. अभी समझ में आ गया कि जब 4n greater than होगा तो उसके हिसाब से हमने निकाल दिया इसको. ठीक है. So we want to put the question number 2, which is it says the sum of the third and seventh terms. Sum of the third term. So we write A3 plus A7 of an AP is 6 is equal to कितना है? 6 है. First equation. And their product is 8. किसका प्रोडक्ट है? A3 का और A7 का. इसका जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 8 है. This is the second equation. ठीक है. Now find the sum of the first 16 terms of an AP. ठीक है. So from 2, A3 is equal to 8 by A7. ठीक है. ये इक्वेशन हो गई. Now putting this value in equation number 1, putting this value in equation number 1. ठीक है. We put in this equation. So A3 कितना है? 8 by A7. ठीक है. So this is plus of A7 is A7 only. So this is equal to 6. हमने इस इक्वेशन में डाला है ना. So 8 plus A7 square is equal to A7 into
6. ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका, सपोज करो A7 की वैल्यू, लेट अस एज्यूम दैट A7 की वैल्यू x है, सपोज A7 इज इक्वल टू x. ठीक है, सो 8 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू 6. सो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0. बिकॉज जब ये यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, इस साइड पे आएगा ना, ये माइनस हो जाएगा. सो वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 6. कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2, सॉरी 8 का एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2. सो 4 और 2 हम ले लेंगे. ठीक है, सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0. सो x we can take a common. So x minus 4 minus 2 x minus 4 is equal to 0. So x minus 2 or x minus 4 is equal to 0. So x is equal to 2 है या x equal to 4 है, इसकी दो वैल्यूज आ गई. ठीक है, सो अभी हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है, जैसे a n is equal to a plus n minus 1 whole into d. ठीक है, सो अगर हम इसमें a3 निकालें तो a3 कितना हो जाएगा? a3 is equal to a plus 3 minus 1 whole into d, that is equal to a plus 2d. और ऐसे ही हमारे पास a7 कितना आ जाएगा? a plus 60. ठीक है, सो x कितना है? a7. सो a7 की वैल्यू हमारे पास दो है वैसे तो, 2 and 4. सो अब इसमें कौन सी वैल्यू होगी ये हमें पता लगाना पड़ेगा. इसमें दो वैल्यूज आएंगी हमारे पास ना. सो विच वैल्यू विल बी, क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट दो, अगर हम मान लीजिए a3 आ गया ना, तो दिस इज थर्ड इक्वेशन एंड दिस इज फोर्थ इक्वेशन. ठीक है, सो अब अगर हमारे पास a7 आ गया है तो वी कैन पुट इन दिस इक्वेशन, दिस इज फिफ्थ इक्वेशन. इसमें हम डाल के देखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू a7 है ना, तो इक्वल टू या तो 2 होगा या तो 4 होगा. तो ये दो वैल्यूज आएंगी, इसमें डाल के देखते हैं कौन सी वैल्यू आपको हो जाएगी इसमें. ठीक है, 8 a3 इज इक्वल टू 8 बाय 2 इज इक्वल टू 4 और a3 इज इक्वल टू 8 बाय 4 इक्वल टू 2. सो दो वैल्यूज आएंगे हमारे पास. और सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स, तो एक्चुअली a7 दिस इज a3 प्लस a7. तो हमारे पास अभी a7 की जो वैल्यूज हैं वो आई हुई हैं 2 and 4 और a3 की वैल्यू आई हुई है 4,2. सो दोनों की वैल्यू हमारे पास a7 की वैल्यू 2 and 4 और ये वैल्यूज हैं. ठीक है, सो इसमें से हमें एक सिलेक्ट करना है. सो हमारे पास लाइक सपोज अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो या तो ये वैल्यूज हो जाएंगी 4 to 8 या ये वैल्यू हो जाएगी 2 to 8. सो कोई भी हम एक वैल्यू सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट तो एक्चुअली 8 आना चाहिए, 8 ही आ रहा है, सम आना चाहिए 6 ही आ रहा है. और सपोज वी सिलेक्ट लाइक जो एपी सीरीज है, अगर उसी थर्ड टर्म को 2 कर देते हैं और सेवेंथ टर्म को हम 4 कर देते हैं, तो दिस वैल्यू वी कंसीडर सपोज. सो a7 is equal to 4 and a3 is equal to 2. So what will be the first term? First term के लिए हमें इस वैल्यू में डालना पड़ेगा ना, फर्स्ट टर्म के लिए, because that is not given. So a7 अगर हम इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, subtracting 3 and 4, subtracting 3 and 4, ये दोनों इक्वेशंस को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो a plus 2d minus a minus 60 is equal to a3 minus a7. ठीक है, so this is get cancelled, minus 4
4d इज इक्वल टू A3 माइनस A7, ठीक है। सो A3 कितना है 2 माइनस 4, माइनस 4d इज इक्वल टू 2 माइनस 4 4d इज इक्वल टू माइनस 2, सो d इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 1/2, 2/4 हो जाएगा इक्वल टू 1/2. So the common difference is 1/2 and the first term हमें निकालनी है, तो जैसे A7 हमने कितना लिया है 4, तो 4 इज इक्वल टू इसमें डाल देंगे A कितना है, A हमें नहीं पता और 6 हमें पता है इंटू 1/2, so 3, so A इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1. तो A कितना आ गया आपका 1 आ गया और D कितना आ गया आपका हाफ आ गया. सो अब आपको क्या निकालना है, सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन AP. So this is the formula for nth term of the AP. Nsen is equal to n/2 whole into 2a plus n minus 1 whole into d. So अभी हमने इसमें कितना निकालना है, as 16 निकालना है, 16 terms, 16 terms है, is equal to 16/2 whole into 2 into a. ये कितना है आपका 1, so 1 लिख देते हैं, plus n minus 1 कितना है 15 इंटू हाफ, इसीलिए कट जाएगा 8 आ जाएगा 8 इंटू 2 प्लस 15/2, 15/2 में यहाँ 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 गेट कैंसिल, 4 इक्वल टू 19 इंटू 4 इक्वल टू 36. 76 is the answer of the 16 terms. So we go on towards the next question now. ये तो कंप्लीट हो गया हमारे 2 क्वेश्चंस. So we want to question number 3 of exercise 5.4. So it says that a ladder has rungs. Rungs क्या होता है कि जो ladder होता है ना, जैसे ये ladder ऐसा कुछ कीजिए, इसका जो ये पार्ट होता है जैसे हॉरिजॉन्टल पार्ट है ये लगा होता है, इसको rungs बोलते हैं, rungs. So this is rungs, ठीक है. और ये जो has rungs 25 centimeters apart. This is क्या, ये डिस्टेंस जो रखा है that is 25 centimeters का. The rungs decrease uniformly in length from 45 centimeter at the bottom, यानी कि decrease uniformly in length from decrease हो रहा है ना ऐसे, from decrease at the bottom 45 centimeters at the bottom. सपोज ये बॉटम है इसका, तो ये 45 सेंटीमीटर्स का है बॉटम, 225 सेंटीमीटर्स एट द टॉप. यहाँ पे कितना है 25 सेंटीमीटर्स एट द टॉप. और इसके जो बीच में है ये डिक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्मली लेंथ फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, ठीक है. ऐसे करेंगे इस तरह से, थोड़ा मतलब slowly it is increasing its length, इस तरह से ये ऐसे करके इसको कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बने, ठीक है. इसके बीच में जो डिस्टेंस है ना, दिस डिस्टेंस बिटवीन दिस, इसको रंग्स बोलते हैं ना, रंग्स ये हो गया रंग्स, ठीक है. तो ये इसके बीच में डिस्टेंस है, इट इज 25 सेंटीमीटर्स का. Okay, if the top and the bottom rungs are 2.5 meters apart, what is the length of the required wood? यानी कि टॉप से लेकर के नीचे तक, ये जो लास्ट वाली जो रंग्स हैं यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है 2.5 meters, ठीक है. तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मीटर और सेंटीमीटर में कितना होगा, क्या क्या होता है. सो 1 मीटर में 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, ठीक है. ये एक कन्वर्जन होता है, यूनिट कन्वर्जन, इसे यू कैन रिमेंबर आल्सो. एंड सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स. सो अभी हमने इसका जो फर्स्ट टर्म है वो हो जाएगा 45 सेंटीमीटर्स, 45 सेंटीमीटर्स का, ठीक है. सो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो 2.5 मीटर्स में कितना हो जाएगा
is equal to 2.5 यानी 2.5 into 100. So this is equal to 250 centimeters. ठीक है. So ये sum of the terms, हमारे पास जो sum of the terms है ना, ये total length है इसकी, यहाँ से यहाँ तक की total length. ठीक है. If the top and bottom runs are ये this length. ठीक है. So इसका जो लेंथ है उसको हम नंबर ऑफ रन्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे ना, फर्स्टली वी विल यूज दिस फॉर्मूला. 250 सेंटीमीटर्स टोटल है और हर एक के बीच में डिस्टेंस कितना है 25. सो इसमें +1 कर देंगे, एक ऐड हो जाता है. ठीक है. सो दिस इज 10 इक्वल टू 11. सो टोटल नंबर कितना आ गया, n आ गया हमारे पास 11. n is equal to 11 we get. So अब हमने इसमें टोटल लेंथ फाइंड करनी है इसकी. ठीक है. दैट इज सम ऑफ द टर्म्स. फर्स्ट इज 45 और टॉप पर दे रखा है हमारे को ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दे रखा है और ये डिस्टेंस दे रखा है और हमारे को ये डिस्टेंस भी दे रखा है, ये वाला डिस्टेंस दे रखा है, पर हमारे को ये डिस्टेंस चाहिए. ये कितना डिक्रीज हो रहा है एट द टॉप एंड द बॉटम. तो नंबर कितना 11 runs are there and the first term is given us. suppose तो हमने first term मेरे पास 45 आ गई है, तो अभी हमने इसका डिफरेंस फाइंड करना है. कॉमन डिफरेंस अगर हमारे पास आ जाएगा तो हम लोग इसको आराम से लेंथ टोटल फाइंड कर सकते हैं. इसकी टोटल लेंथ मतलब सम ऑफ द टर्म्स में फाइंड करना है. ठीक है. सो ये टोटल लेंथ, इसकी टोटल लेंथ मतलब कि टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ द ऑल द टर्म्स हैव टू बी फाइंड आउट. सम n is equal to n/2 or into 2 into a और प्लस n-1 और into d. ठीक है. लेकिन हमारे पास अभी हमारे पास जो नहीं है वो है d डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस हमारे पास नहीं है. सो अभी हमारे पास ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जैसे कि ये हमारे पास ऐसे करके है और ये ऐसे है. ठीक है. सा इस तरह से है. ठीक है. सो what is the length of the road required for the runs. ठीक है. So इसमें क्या करना है ना, हमने अभी नंबर ऑफ टर्म्स तो n तो हमारे पास आ गया, ये इक्वल टू n हो गया. ठीक है. नंबर ऑफ टर्म्स तो हमारे पास आ ही गई. ठीक है. अब हमारे को d चाहिए डिफरेंस. सेकंड वाला अगर हमें मिल जाए तो ये इजीली हो जाएगा. ठीक है. सो n इज इक्वल टू 11 है तो टोटल 11 है और टोटल डिस्टेंस हमें दे रखा है 250, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक 250 दे रखा है और नंबर हमारे पास आ गया. और अब हमें ये 11 है तो अब जैसे पहले 45 है और लास्ट वाला 25 है. ठीक है. तो फर्स्ट इज 45 एंड लास्ट इज 25. हमें लास्ट पता है, फर्स्ट पता है और हमारे को ये फॉर्मूला भी पता है कि an is equal to a plus n-1 और into d. So अब हमें d तो निकालना है इसमें, तो an हमारे को दे रखा है 25. So it's very simple. इसमें 25 डाल दीजिए यहाँ पे और is equal to a कितना है फर्स्ट टर्म, that is 45. So 45 will write it here and one number of terms is 11. So 11 minus 1 is 10. 10 into d. So ये आ जाएगा तो 25 minus 45 is 20. So 20 is equal to 10d. Sorry minus 20 हो जाएगा ना, ये minus 25 minus 45. ठीक है. minus 20 हो जाएगा. So ये कट जाएगा. So d is equal to -2. d is equal to we get -2. तो ये हमारे को यही चाहिए था, d चाहिए था. अब हम क्या करेंगे इसको d में मतलब इसमें हम लोग अपना n/2 है ना, तो सम ऑफ द 11 टर्म्स. ठीक है. सम ऑफ द 11 टर्म्स इज हाउ मच, 11 टर्म्स इज इक्वल टू n कितना है 11, नंबर ऑफ टर्म्स इज 11 divided by 2 or into 2 into a is how much 45 plus n-1 11 minus 1 whole into -2 because d is -2. So this is equal to 11 by 2, 11 by 2 into 90 हो जाएगा ये, 90 plus minus
ये माइनस हो जाएगा, -20 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 10 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो माइनस को माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, सो 70 इज इक्वल टू 11 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 2 और इज इक्वल टू कट जाएगा 35 आ जाएगा, सो 35 इंटू 11 कितना हो जाएगा 5, 385, तो इसका आंसर हो जाएगा 385, ठीक है, सेंटीमीटर्स में, ठीक है।